सो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं थैंक यू सर। आज का थैंक यू सर। मेन इंपॉर्टेंट तैयारी जॉब की। सो आज जो हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो है पीपीसी का इंटरव्यू है, और ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, डरने की बात नहीं है, कोई चीजें नहीं आएगी तो मैं आपको फीडबैक भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो जो भी आप गलतियां करेंगे, जो एक्टिविटीज आप करेंगे, उसकी फीडबैक भी मैं आपको दूंगा कि आपने क्या गलती किया, क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं सुधारना चाहिए, सब चीजों को लेकर बात करूंगा। सो नाउ सिंह, अभिषेक, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Hello sir, my name is Abhishek Singh and I'm graduate from Mechanical Engineering of Alpha College, and I have an interest about digital marketing from the beginning of the college. So after completing of my college, I started your course. That's all. That's it. So why you want to join this company? What's a big objective? Why you want to join this company and why you apply for this PPC position? Yeah, ये Abhishek. दो हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है yeah, अपना मतलब करियर बनाने okay. करियर बनाना वालों चाहते का हो? अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दिव्या, प्लीज गो अहेड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Daring Divya. I did my schooling from St. Thomas Senior Secondary School, Mandsaur, situated in MP, and I'm pursuing BBA from GLS University, Ahmedabad, with the specialization in the marketing field only. And along with that, I am doing digital marketing. So the purpose for doing digital marketing was that actually this is a part of my interest as well. And considering the era, every company wants to shift digitally, so every company needs a digital marketer and they are hiring them. So it was a part of my interest and it was a scoping platform, so I joined this. Okay, so Rahul, please tell me about yourself. Your mic is mute. Your mic is mute. So Yeah. my name is Rahul Vaswani. I am currently doing digital marketing from DSA. I am currently pursuing my BCom from Asia Pacific College, and I'm situated in Ahmedabad only. Okay. Okay. So tell me, why you want to switch your career into digital marketing and why you want to join this Actually, company? currently I have a business of mobile accessories, which is Okay. not running well as per Okay. the condition of the markets right now. So So I have to make a change a bit. okay. So See the let's see. water testing and ठीक है, नाउ सी राहुल, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूँ। लेट्स सी तुमने अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे, अगर बिजनेस yes sir. बड़ा हो गया, वापस बिजनेस चालू हो गया, क्या जॉब लेफ्ट कर दोगे? जी sir. नहीं सर, क्यों? अभी ऐसा बिल्कुल स्कोप नहीं मेरा, क्योंकि मेरे को और मेरे ब्रदर को हाँ, दोनों डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और राइट, दोनों में काफी अच्छा स्कोप दिखता है हम दोनों को. राइट. सो अभिषेक, राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग? हाँ, म्यूट हो आप, म्यूट हो अभिषेक. सर अभी ऐसे मिडास मेटकॉइन करके कंपनी है, उसमें मैं एज ए सुपरवाइजर काम करता हूँ। ओके, सुपरवाइजर काम करते हो, अभी भी कर रहे हो? यस सर। ओके, सो उसके बाद में क्या लगेगा, मतलब क्या इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हो आप? हाँ सर, मैंने उस लीव लेटर दे दिया है उनको। Okay. 3 to 4 डेज में मैं उनको रिजाइन करने वाला हूँ। ओके, रिजाइन करने वाला हो. अच्छा दिव्या, टेल मी व्हाट इज सीटीआर? दिव्या, टेल मी व्हाट इज सीटीआर? So this means the percentage of people clicking on our ads. Okay, so can you tell me the CTR formula? It is click upon impression into 100. Okay, CTR कौन कौन से लेवल पे दिखा देता है? CTR is shown on in overview, in keywords, ads, and campaign level. At all level, it is shown. Okay, so if you see on ad group level on CTR, so what action you will take? On ad group level? Yes. Okay. So particularly if we see on ad group level, the CTR is less than 7%, then we'll go through the keywords used in that ad group. And if the keywords are not working, if some keywords are working and some are not working, those who are not working will stop that keywords. Okay, okay. So Abhishek, can you tell me what is keyword match type and why keyword match type is so much important? कीवर्ड मैच टाइप सर वो ऐसा सेगमेंट होता है जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ब्रॉड मैच यूज करना है
या फिर एग्जैक्ट जो कीवर्ड हम लगा रहे हैं उसी के रिलेटेड हमें सर्च चाहिए। इससे क्या होता है सर कि अगर हम कीवर्ड मैच टाइप इसलिए यूज किया जाता है कि हमें इरेलेवेंट जो कस्टमर्स होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। Okay, so can you tell me keyword match type? हाँ सर, फर्स्ट ब्रॉड मैच होता है, फिर ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड नेगेटिव कीवर्ड, 5 टाइप्स होते हैं। Okay, so can you tell me what is the difference between broad match and phrase match? ब्रॉड मैच में सर सिनोनिम्स और उसके रिलेटेड सबको ज्यादा में प्रीफिक्स सफिक्स सब आ जाता है, लेकिन फ्रेज मैच में ये होता है सर जो उसके और जो जैसे कि हमें फाइंड करना है बाइसिकल इन अहमदाबाद, तो वो जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है बट उसके आगे का चेंज हो सकता है। लेकिन ब्रॉड मैच में सर प्री भी आ सकता है, हर एक चीज आ सकता है। Okay, so can you tell me what is negative? नेगेटिव वो होता है सर, ये फिल्टर होता है कि किस वर्ड पे हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारा जो कस्टमर है वो सर्च, जैसे कि फ्री का कोई चीज है, हम जैसे हम कोई कोर्स फ्री में नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि फ्री वाला ना हो, तो हम वो फ्री वाला नेगेटिव वर्ड में डाल सकते हैं ताकि वो अगर कोई सर्च करे तो हमारा डिस्प्ले ना हो ऐड। अच्छा मुझे बताइए, लेट्स से क्लाइंट आया तुम्हारे पास में अभिषेक और बोलता है कि मुझे ऐड चलानी है, तो उसके लिए कौन सा मैच टाइप आप सेलेक्ट करेंगे एंड व्हाई? सर उसके लिए फ्रेज मैच ही यूज किया जाएगा, क्योंकि फ्रेज मैच में ऐसा होता है कि वो उसके जो रिलेटेड वर्ड जो कीवर्ड्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और उसमें हम नेगेटिव हम डाल देते हैं तो और भी यहाँ फिल्टर हमें रिजल्ट मिलता है। अच्छा, कीवर्ड मैच टाइप कौन से लेवल पे सेट करते हैं? कीवर्ड मैच टाइप सर कीवर्ड लेवल पे। Okay, done. Okay, so Rahul, tell me what is ad extension? Rahul, tell me what is ad extension? Go ahead. Ad extensions are those extensions which helps us to create more clicks on our ad. Okay. So it makes our ad more trustable, Right. more likely, more desirable. Okay. It helps Okay. us to grow our business more clicks. Okay. So can you tell me the ad extension types? Call extension, call out extension. Then there is just a second, please. Sorry, Okay. sir, I can't Okay. remember No anymore. issue. No issue. What is? Can you tell me what is the difference between call extension and call out extension? The call extension stands for if someone is searching from a mobile or Right. on tablet, they can click on our number and directly contact us. Okay. And call out? And call out extensions are those extensions which highlights our USP. Right. Like so how I USP. can identify this is call out extension or something else extension? So call out extensions are likely very short. They are very short USPs of our ad. Let's see. Our ad. I just want And to share the screen. I just want to share the screen. Can you just tell me? Yes, sir. Can you just tell me? Sure, sir. इसमें से call out extension कौन सा? Let's say I'm searching digital marketing course, right? Let's see if I'm searching digital marketing course. Can you just tell me if you see some ads here, right? If you see some ads, right? Can you tell me what are the call out extension there? Yes, you see IBA digital marketing. Yeah, can you tell me? Digital marketing. Okay, IB. Oh yeah, this is right. ISB. Ah. Yeah. So Yeah. there is small dots. Apply now. After where this? Pre-roll. Yeah, After this. the career growth. Yes, sir. Yeah, this. Okay. So can you tell me what? Okay. So why we want to use call out extension? What's a big benefit if I'm not using call out extension? Right. Yes, sir. Yeah. Tell me. It makes our ads more bigger. Okay. It's which more bigger. Makes it helps. Okay. It's more bigger, which helps to make it more trustable, more likely, more desirable. Okay. Okay. So can you tell me what is this? What is this? This is final URL. This is display URL. Sir, this is display URL. Display URL. Okay. And what is this? So these are site link extensions, I think. Site link extension. Why we want to use site link extension? Sir, these if a customer is searching for a specific term, then they will directly shoot them to that page. Sorry. Okay. So why we want to use and why we want to just use the another page, customer? Sir, if someone is searching for a specific thing, and we have a separate page for that. Okay. So we can use them so that customer can go directly to that page as per their needs. So let's see how you can optimize the call out extension. So how you can optimize the extension?
how you can optimize the extension? We can optimize by various terms like giving more options, directly using more helpful pages of ours, more beautiful links. नहीं more मुझे beautiful बताइए, pages. नहीं मुझे ये बताइए कि हमने जो एक्सटेंशन यूज किए, कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, साइट लिंक यूज किए, Yes, sir. उसको ऑप्टिमाइज करना जी, होता है कि नहीं होता है? ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपने को, राइट? जी सो सर, जी ऑप्टिमाइज सर। करना है तो मुझे बताइए मैं कौन से लेवल पे जाऊँ ऑप्टिमाइज करने के लिए, एंड हाउ वी कैन सर डू आप ऑप्टिमाइज? हाँ, कैंपेन पे गया कैंपेन लेवल में जाएंगे, जब न्यू हाँ एड क्रिएट करेंगे हम, हाँ। तब हम न्यू कैंपेन में नीचे नीचे हमारे को ऑप्शन आता है नहीं मुझे ऐड एक्सटेंशन नहीं का। करना, मुझे ऐड नहीं करना, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो यूज किया है उसमें को उसको देख के मुझे ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है जैसे आपने कॉल आउट एक्सटेंशन यूज किया होगा, 10 यूएसपी यूज जी सर, की, राइट? तो गूगल 10 तो जी यूएसपी दिखाएगा नहीं, तो मुझे ये देखना है जी कि कौन सी यूएसपी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, राइट? सर मैं स्पेसिफिकली थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। मैं आपको एड्स दिखा सकता हूँ, नहीं नहीं आपकी जो मुझे एड्स हैं। मेरा मेरा ये है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरा जी क्वेश्चन क्या है। मैं आपको जी सिंपल ये बताता हूँ कि आपने एक्सटेंशन ऐड कर दिए, कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड जी किया। सर, जी अच्छा, सर। कॉल एक्सटेंशन आउट एक्सटेंशन में कितनी यूएसपी ऐड की आपने? लेट्स अज्यूम कीजिए 10 यूएसपी यूज की, 10 राइट? यूएसपी ऐड की हमने। अच्छा, यस सर। सारी की सारी यूएसपी गूगल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? नहीं सर, वो नहीं। रैंडमली ही दिखाता है। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि गूगल ने कौन सी यूएसपी दिखाई, मुझे ये देखना है, ये बताओ। सर उसका आइडिया नहीं है मुझे। ओके, दिव्या गो अहेड। Sir, adds and add extension, ठीक है, क्लिक किया, उसके बाद extensions. एक्सटेंशन, उसके बाद उसके बाद दिव्या Sir, sir, scroll down. बताओ बताओ। सर आई डोंट थिंक सो हम ऐसा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम एक्सटेंशन जान अभिषेक, सकते हैं कि अभिषेक बताओ। सर हम एक्सटेंशन का सर हम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते सर, उसके अच्छा, नहीं कीवर्ड सर। आता है। आर यू श्योर? यस आर यू सर, श्योर? यस सर, दिव्या आर यू श्योर? यस सर। राहुल आर यू यस श्योर? सर। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, नो इशू। दिव्या, टेल मी हाउ टू ऑप्टिमाइज एड, टेल मी व्हाट आर द मेथड टू ऑप्टिमाइज एड, जो आपने कैंपेन चलाया है, हाँ उसका बताओ। Okay. Initially we'll go through overview. Initially we go through the overview, ठीक है, and overview what you see? We'll initially see the how many clicks and impressions have been placed to, and how ठीक है, many budget has been cut through our ads. Then okay, we will go to like ad group part, okay, and then we'll see the CTR, okay, CPC, and the conversion rate. okay, what is And then CPC? Can you tell me what is CPC? CPC, cost per click. This is the amount which is the Google cuts for a particular click. राइट, अच्छा मुझे दिव्या ये बताओ कि मुझे अभी एक प्रॉब्लम आई है कि लेट्स सी मुझे सारे एड में जो मैंने यूआरएल यूज किया था, मैंने ऐड में सारे Okay. यूआरएल यूज किया था, वो बाय मिस्टेक मैंने गलती से कुछ दूसरा यूआरएल यूज कर लिया है, ठीक है, दूसरा यूआरएल यूज कर लिया है। Okay. मुझे सारे ऐड के यूआरएल Okay. चेंज करना, मैं कैसे करूं? सर कैंपेन लेवल सेटिंग्स में जाके ठीक है, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बताओ मुझे प्रोसेस बताओ। क्वेश्चन क्लियर दिव्या? मैंने ऐड के साथ जो यूआरएल यूज किया है, ठीक है, वो Okay. बाय मिस्टेक मैंने गलत यूज कर लिया है, मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं कैसे करूं? ओके, तो हम पर्टिकुलर जैसे उस पे क्लिक करेंगे कैंपेन पे, ठीक है, गया, उसके बाद एडिट, एडिट, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे जाऊँ एडिट? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ दिव्या? तब पर्टिकुलर कैंपेन पे क्लिक करेंगे हम अच्छा, पहले। मुझे सिर्फ कैंपेन लेवल का सर्च देखना था, उसके बाद कैंपेन पे क्लिक किया, उसके बाद एडिट का ऑप्शन, लाइक जैसे हम लोग अगर सारे एड ग्रुप्स में हमने गलत डाल दिए तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे। तो मैं क्या करूँ अभी? सेलेक्ट ऑल करूँ? यस सर। उसके बाद फिर सर वो ऊपर आ रहा है मोर डिटेल्स। कहाँ पे आ रहा है? ये वाला कहाँ पे आ रहा है? ये वाला? यस सर। ठीक है, उसके बाद एडिट इन सेटिंग्स। एडिटिंग सेटिंग, उसके बाद सर फिर नीचे जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद additional settings, ठीक है, उसके बाद campaign URL options. कहाँ पे आ रहा है ये तो यहाँ पे तो कुछ डाला हुआ ही नहीं है, कहाँ डालूं मैं इसको? बताओ अभिषेक बताओ। So might be ad group level में जाके करें हम। हाँ मुझे बताओ ना, आप जहां बोलोगे मैं जानने के लिए रेडी हूँ, बताओ। सारे एड ग्रुप्स को सिलेक्ट करके। नहीं, ठीक है, थैंक यू दिव्या। अभिषेक, डू यू वांट टू हैव सम आइडिया? डू यू हैव सम No, sir, आइडिया इसके अबाउट? ओके राहुल, डू यू हैव sir. सम आइडिया? So select all campaigns. Select all campaign. Oh, And, sorry, all ads. All ads, great. So उसके these बाद ads. हाँ ओके, उसके बाद So edit. उसके बाद उसके बाद उसके बाद नहीं सही। ठीक Sorry, है। sir. सो नाउ सी गाइस एवरीवन, सी इधर ये सारे एड ग्रुप पे भी जाते हो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है गाइस। और आपको ये एडिट का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है, सब यहाँ पे याद रखना। यू गो टू कीवर्ड लेवल। कैन यू सी एवरीवन? Yeah. Yes, sir. यस, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरी गलती क्या की आप लोगों ने, साथ में बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि एड एक्सटेंशन को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है, एक्सटेंशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है। यहाँ देखो, मैं ऑल डेटा करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें क्लिक इंप्रेशन आ रहा है कैसे? Yes, sir. कॉल आउट Yes. एक्सटेंशन आ रहा है आपको? कॉल आउट आ रहा है? ठीक है, Yes, अब sir. मैं क्लिक करता हूँ, कॉल आउट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सारा एक्सटेंशन आ गया इधर गाइस। Yes. यानी सीधा दिखा दे आपको। अब बताओ कौन सा एक्सटेंशन सबसे ज्यादा दिखाई गया है? डाउट सॉल्विंग। राइट, दिखाई दे रहा? क्या हम लोग जिस एक्सटेंशन को ज्यादा नहीं दिखा रहा उसको बंद कर सकते कि नहीं कर सकते? यू गॉट इट गाइस, क्लियर? समझ में आया आपको? गलती Yes, मत sir. करो, ठीक है, साथ में करेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। नाउ सी अभिषेक, मुझे ये बता, ऑप्टिमाइज करने का एक पॉइंट बता, ऑप्टिमाइज करने का एक पॉइंट। सर लोकेशन वाइज, डेमोग्राफिक वाइज भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? लोकेशन पे जाकर सर कौन से लोकेशन से ज्यादा सर्च हुआ है वो जाकर वहां से हम, ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन, इफ आई गो टू हियर, लेट्स सी, यहाँ पे लोकेशन पे गया, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर इसमें जो सबसे ज्यादा जहां से सर्चेस आए हैं सर उसको चालू रख सकते हैं, बाकी को बंद कर सकते हैं। कहाँ पे कैसे चेक करूं, मुझे बताओ ना दिव्या, बता। तो क्लिक ऑन अहमदाबाद, क्लिक ऑन गुजरात, इंडिया। अहमदाबाद, उसके बाद पोस्ट कोड, उसके बाद स्क्रीन। हाँ, उसके बाद क्या ऑप्टिमाइज करोगे? हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जैसे ये पिन कोड है एरिया 380007, यहाँ से हमको सबसे ज्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे राहुल अब तुमसे क्वेश्चंस है, मुझे ये बताओ, कन्वर्जन देखने हैं तो कैसे देखो? कन्वर्जन देखते हैं कैसे देखो? हाँ सर, कन्वर्जन के लिए हमको पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालना पड़ता है हमारी वेबसाइट में। Can you tell me the process? Can you tell me the Yes, process how to generate Sir, conversion? there's a tools on the top. Right, okay. उसके बाद Yes. Click on that. Conversion. Okay. कहाँ पे करूँ ये? The measure. Yes. ठीक है, उसके बाद So now we can add our conversion tracking code by another plus button. Yes, plus button. उसके बाद यस सर, तो हमको वेबसाइट का करना है कि ऐप का करना है कि कॉल का करना है, वो आपके क्लाइंट के ऊपर है। देन हम क्या वेबसाइट को सिलेक्ट ये कर सकते हैं। मुझे ये बताओ ना राहुल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, आपके जैसे कॉल आउट एक्सटेंशन या कॉल एक्सटेंशन ऑन है, तो उस पे अगर आपके फोन से या टैबलेट से कोई सिलेक्ट करता है कॉल करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे कॉल के एक्शन पे आपको दिखाएगा कि भैया ना इतने कॉल्स लगे, आपको इतने क्लिक्स हुए उस पर्टिकुलर टैब पे आपके नंबर पे। ओके। और जो वेबसाइट का होता है, वेबसाइट पे सर कितने विजिट्स आए वो हमारे को बता सकते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे पता, चलो मैंने डाल दिया और मुझे चेक करना, तो मैं क्या चेक करूं? बताओ कैसे चेक करूंगा कन्वर्जन आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छा, दूसरा मुझे ये भी देखना है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ,
ये मुझे बताओ। सर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर भी आता है कहाँ से? वहाँ मैं पे यहाँ पे आपको गया, conversion- मैं यहाँ पे गया, चलो ये मेरी वेबसाइट पे गया, उसके बाद जी यहाँ पर सर आपके पास एक एक्सटेंशन होगा टैग मैनेजर। ये वाला। यस सर। अच्छा, उसके बाद इसको क्या करूँ? रिकॉर्ड करूँ, अनेबल करूँ? सर एनेबल ठीक है, करके रीलोड करना है पेज को। रीलोड करना है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा कैसे पता, अभी कैसे देखूं क्या आया कि नहीं आया? अब फिर से उस एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ठीक है, ये किया। कैसे पता चलेगा रीमार्केटिंग हाँ कोड है, कन्वर्जन है कि नहीं है? सर यहाँ पे रीमार्केटिंग का दिखा रहा है, और कोई नहीं आ conversion रहा का है? भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ ना? पे क्या है ये? है। ये है सर, यही है top ना? वाला ठीक है, ओके। हाँ जी। अच्छा अब मुझे बताओ, चलो ये तो मैंने देख लिया, अब मुझे बताओ कि कन्वर्जन मेरी एड से आ रहे कि नहीं आ रहे, कैसे चेक करूं? सर कन्वर्जन ऐड से आ रहे नहीं आ रहे, आप CTR जहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर के बटन में, वहाँ पे जाके आप उसको रिसिलेक्ट करके कन्वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन को सिलेक्ट करो, ऑल राइट। तो लेट्स सी, ये दो आए। अच्छा मुझे ये देखना राहुल, ये दो जो कन्वर्जन आए हैं ये कौन से कीवर्ड से आए, मुझे ये देखना है। सर ये 2 कन्वर्जन आए हैं, आप कन्वर्जन पे क्लिक कीजिए एक बार। हाँ किया, उसके बाद सर सॉरी सर, कन्वर्जन जो हम है ना टूल्स में गए थे, टूल्स में जाइए। हाँ टूल्स में गया, मुझे ये देखना है कि कौन से कीवर्ड से आए, कौन सी एड से आए और कौन से एड ग्रुप से आए। अभिषेक बता, यस सर। बता। सर एड ग्रुप पे क्लिक करना पड़ेगा। एड ग्रुप पे गया, उसके बाद अभिषेक जी सर। उसमें सर कन्वर्जन का कॉलम आता है सर, उससे पता चल जाता है। कन्वर्जन का कॉलम आता है, कहाँ आता है? सर क्लिक के साइड में सर। ठीक है, अगर ये कन्वर्जन का कॉलम नहीं दिखता तो मैं कैसे ऐड करता? सर ऊपर एक कॉलम का ऑप्शन आ रहा है 3 लाइन हाँ, वाला, हाँ। उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नीचे वाले कन्वर्जन पे सर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो सॉरी सर, फिर से उस पर क्लिक कीजिए, किस पे करूं? कॉलम पे ही, कॉलम पे, उसके बाद फिर मॉडिफाई कॉलम, ओके, उसके बाद फिर से परफॉर्मेंस के नीचे सर कन्वर्जन है सर, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ किया, उसके बाद इसमें सर अगर कन्वर्जन का सर अगर ब्लू टिक नहीं होता, हम उसको ब्लू टिक कर देंगे सर, तो वहाँ पे ठीक डिस्प्ले हो है, जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए एड ग्रुप आ गए, तो एड ग्रुप में कौन से एड ग्रुप से कन्वर्जन आए ये बता। कौन से एड ग्रुप से कन्वर्जन आया? हाँ सर एक डीएम क्लास करके कन्वर्जन है, उसमें आया हुआ है, ठीक और है, एक ये वाला डीएमसी करके सर उसमें। ठीक हाँ है, सर टॉप में एंड थर्ड वन। ओके राइट। और अब मुझे बता, एड लेवल का बता, कौन सी एड से आए। अब मुझे बता, ये जो एड ग्रुप, ये जो इस एड ग्रुप से जो अपने को कन्वर्जन हुए हैं, मुझे ये देखना कि इस एड ग्रुप में कौन से कीवर्ड से कन्वर्जन हुए हैं। तो सर इसके ऊपर हम कीवर्ड पे जाएंगे सर। हाँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? साइड में सर कीवर्ड, यहाँ पे क्लिक करूँ? नहीं सर, लैंडिंग पेज के नीचे जो कीवर्ड है ना सर, वहाँ पे। हाँ ठीक है, अब उसके बाद सर इसमें देखेंगे, इसमें सर कन्वर्जन का कॉलम हमें सर ऐड करना होगा, अगर नहीं होगा तो। कन्वर्जन का है, इधर है, ऐड किया हुआ है। हाँ जस्ट तो सर जस्ट इसमें सर डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस है ना सर, उसमें देखिए सर कन्वर्जन लिखा हुआ है 2। हेलो, हाँ अब मुझे बता, अब इसका बता। और सर हाँ सर नीचे डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स लिखा हुआ है, उस पर एक कन्वर्जन हुआ है सर। ठीक है, फुल कोर्स में हुआ है। अच्छा मुझे ये बता, जी। मुझे ये बताना काम है, अभी तेरे को एक और चीज पूछता हूँ, ठीक है? अब मैं पूछता हूँ, दिव्या तुम्हारा हो गया, राहुल का हो गया, ठीक है, अब दिव्या को लेता हूँ। दिव्या तुम बताना मुझे, चलो मैं पीपीसी ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, अगेन सीपीएल डाउन लाना है, सीपीएल डाउन लाना है, ठीक है, और सीपीए कम पैसों में लाना है, सीपीएल कॉस्ट पर लीड डाउन लाना है, और मुझे सीपीए कम लाना, कम पैसों में लाना है।
तो मैं ऑप्टिमाइज क्या करूं, क्या क्या ऑप्टिमाइज करूं? इनिशियली हम देखेंगे कि एड्स प्रॉपर चल नहीं रही है, और हम लोग ये चलो, देखेंगे कि कौन सी ये एड्स। दिव्या, ये पीपीसी का पूरा काम हो गया, पीपीसी का अपार्ट फ्रॉम बोलो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हमको कौन से एड ग्रुप्स, कौन से कीवर्ड से कन्वर्जन हो रहे हैं, और जिस कीवर्ड से कन्वर्जन हो रहे हैं हम वो चलने देंगे, और ठीक है, जिससे नहीं हो रहा है, जिससे इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे हैं, तो हम वो कीवर्ड पॉज कर देंगे। ठीक है, और फिर सेकंड हम ये चाहेंगे कि हमारा सीपीएल, हमारा कन्वर्जन बढ़े। ठीक सीपीएल है, डाउन होगा तो कन्वर्जन बढ़ना चाहिए, तो हम लोग ठीक क्या है। करेंगे, रीमार्केटिंग एड चलाएंगे। अच्छा, और हम लोग अभी ये भी अभी चेक करेंगे अब कि सुना, कन्वर्जन। एक मिनट दिव्या, तुम एक एक बोल दी, थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछता हूँ। रीमार्केटिंग को क्या होता है? रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट पे आके विजिट करके गया, तो उसका कुछ ट्रैक हो जाता है, लाइक कुकीज ट्रैक हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं उसकी। अगर नेक्स्ट टाइम हमको चाहिए कि हम उन्हीं लोगों को हमारी वापस ये ऐड दिखनी चाहिए, तो हाँ, विल जनरेट, मतलब वो ऑडियंस सिलेक्ट कर देंगे, तो उनको हमारी एड्स दिख जाएंगी। ठीक है। एक दिव्या जाइस 2 मिनट, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ, यस, अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन था तुम्हें? रीमार्केटिंग। सो मुझे बताओ, रीमार्केटिंग कहाँ का टारगेट करते हैं? स्टूडेंट को कहाँ का टारगेट कर सकते हैं? जो हमारी वेबसाइट को विजिट करके जाता है, कहाँ कहाँ किसकी जगह उसको ऐड दिखेगी, ये बताओ। लाइक डिस्प्ले चलाना है तो कोई सी वेबसाइट, कोई सा यूट्यूब चैनल, ऐसे करके हम डिस्प्ले चला सकते हैं। और कहाँ दिखेगा? वेबसाइट पे दिख सकता है, यूट्यूब पे दिख सकता है, एप्लीकेशंस पे दिख सकता है। और ओके, और हाँ, वेबसाइट, यूट्यूब एंड एप्लीकेशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गाइस, कोई ऐड करना चाहोगे कि हमारी वेबसाइट को जो बंदा विजिट करके जाता है, तो वेबसाइट, एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल के अलावा कहाँ दिख सकता है उसको? और सर कोई एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे एप्लीकेशन दिखेगा, आ गया, लिंक। एप्लीकेशन इसने बोल दिया, और कहाँ दिख बस सकते सर, हैं? ठीक है, जीमेल कहाँ दिखता है गाइस? जीमेल, ईमेल। जीमेल में रिटारगेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ दिव्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों को ऐड नहीं दिखानी है जो ये पेज को विजिट करके जाए, मुझे उन लोगों को ऐड दिखानी है जो स्पेसिफिक ये पेज को विजिट करके जाता है, या ये वाला पेज जो मेरा वेबिनार का जो पेज है ना, सिर्फ इसी पेज को विजिट करके जाए, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग का इसी पेज को विजिट करके जाए, उन्हीं को मुझे ऐड दिखानी है। तो कैसे कर सकता हूं, बताओ दिव्या। मतलब लाइक हम इस पेज पे रिमार्केटिंग कोड, नहीं तो जो हम लोग रिमार्केटिंग कोड जनरेट करते हैं, यूआरएल में ठीक है, चेंजेस ला सकते सो हैं कि मुझे प्रोसेस बता देंगे, हाउ टू जनरेट रीमार्केटिंग कोड? टूल्स, टूल्स, ठीक है, ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर, ठीक है, ऑडियंस मैनेजर, और ऑडियंस सोर्स, ठीक है, ऑडियंस सोर्स, ठीक है, और फिर गूगल डिटेल, गूगल डिटेल पे एड क्लिक, टैग्स। चलो हाँ, मैं डिटेल पे क्लिक कर दिया, ये मैंने ऑलरेडी ये टैग पे क्लिक किया। अच्छा, ये कोड कहाँ डाला जाता है? ये कोड सर कहाँ डाला जाता हेड है? में, हेड हेड और बॉडी सेक्शन, के बीच में। ठीक है, डन। अच्छा मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि चलो मैंने रीमार्केटिंग कोड डाल दिया, तो ये वेबसाइट में कोई भी बंदा कहाँ डाला, हर पेज पे डाला जाता है या सिंगल पेज पे डाला जाता है? होम पेज पे। होम पेज पे डाला जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ दिव्या, मुझे ऐसी ऑडियंस बनानी है जो सिर्फ इसी पेज को विजिट करके जाए, इसी पेज को, तो मैं कैसे करूं दिव्या? सर हम जो मतलब लाइक हम लोग ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हम हाँ, पर्टिकुलर इस वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं कि कैसे, ये मुझे थोड़ा बता देंगे आप? ऐड हाँ, प्लस पे क्लिक करेंगे, हाँ, वेबसाइट विजिटर्स, हाँ, ऑडियंस का नेम, ठीक है, डाल दूंगा मतलब उसके लाइक बाद। जो फेसबुक, हाँ, हाँ, विजिटर्स ठीक ऑफ है, पेज, जो ये यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है ना, पेज यूआरएल, हाँ, हम वही पेज का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ पर्टिकुलर हो चेंजेस कोई करना है? वेबिनार, इसमें कोई करना, ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेंबरशिप ड्यूरेशन? मतलब ये तो हम 540 डेज रखेंगे, तो लास्ट 540 डेज से हमारे यहाँ विजिट करके गया है, उसमें उसको हम लोग कन्वर्जन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ये लाइक उसको कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये ऑडियंस कब एक्टिवेट होती है, कितने दिन में होती है?
जैसे हमने रिमार्केटिंग कोड डाला है, हाँ और जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसमें ऐड ऑन होता जाएगा ऑडियंस ओके लिस्ट में। डन। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी दिव्या तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे दिव्या, लेट्स से मैंने ये जो मेरा है ये फ्री वेबिनार का है, ठीक है? तो मैंने क्रिएटिव ओके क्या बनाया है, मैंने क्रिएटिव बना दिए, फ्री वेबिनार के क्रिएटिव बना दिए, ठीक है? ओके। अच्छा, मुझे वो फ्री वेबिनार के क्रिएटिव सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना जो इस पेज को विजिट करके जा रहा है, तो मैं कैसे करूं? फ्री वेबिनार रीमार्केटिंग में हम लोग जब रीमार्केटिंग करेंगे हाँ तो इन्हीं को हमारा डिस्प्ले दिखना चाहिए, पर्टिकुलरली फ्री वेबिनार का। तो हम ये वाली ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे जाके, अगर रीमार्केटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्हीं लोगों को हमारा वो रीमार्केटिंग ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा मुझे ये बताओ, राहुल, राहुल तुम मुझे ये बताओ, जी सर। व्हाट इज बीट सिमुलेटर? बीट सिमुलेटर का मतलब क्या होता है? सर बिट सिमुलेटर ऐसा ऑप्शन है हमारे लिए, ऑटोमेशन है जहाँ पे हम सर हमारी बिट सिमुलेट कर सकते हैं। यानी हम अगर एब्सेंट हो या हमारा कोई प्रॉब्लम आ गया हो, हम कहीं बाहर जा रहे हो, तो है ना वो हमारे लिए सिमुलेट कर सकता है। बीट सिमुलेटर, बीट सिमुलेटर, वर्ड सुना, बीट, बीट सिमुलेटर। सर बिट सिमुलेट करता है ना वो सर। हाँ कैसे करता है मुझे बताओ ना। सर यानी वो अपने, अगर हमारा क्या क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्वाजिशन या कॉस्ट पर लीड ज्यादा चला जाता है, तो वहाँ पे वो है ना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है हमारे लिए। ठीक है, मुझे बताओगे कहाँ दिखता है? तो कहाँ दिखता है बीट सिमुलेटर? लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे बताओ बीट सिमुलेटर कहाँ दिखता है? सर सेटिंग्स, सॉरी टूल्स। टूल्स में, ठीक है, उसके बाद अच्छा मुझे ये बता, अभिषेक बता ना, बीट सिमुलेटर कहाँ दिखता है अभिषेक? बीट सिमुलेटर हाँ नो दिव्या, आइडिया। दिव्या बीट सिमुलेटर सर बता। डिवाइसेस में जाएंगे हम नीचे, ठीक है, बहुत बढ़िया, डिवाइस पे गया, उसके बाद हम पर्टिकुलरली हम देखेंगे हमारे सबसे ज्यादा मतलब लाइक कन्वर्जन किस डिवाइस से हो रहा है। सपोज हमारा ठीक है, मोबाइल से डिवाइस हो रहा है तो हम बहुत लोग बढ़िया, एडजस्ट कर देंगे ठीक है। कि ये देखो 10% गाइस, इंक्रीज हो जाए बिट। ये देखो बीट सिमुलेटर यहाँ पे आया, एवरीवन, ये बीट सिमुलेटर बोलते हैं उसको। डिवाइस वाइज बीट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताना, और चीजें बताता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ, एक चीज और पूछता हूँ मैं आप लोगों को, मुझे बताओ ना, एड रैंक देखना है, एड रैंक देखना है, मेरी एड कौन सी पोजीशन पे आ रही है, तो अभिषेक बताओ कैसे देखो? एड रैंक के लिए हाँ एड रैंक देखना है कि मेरी एड कौन सी एड, मतलब कहाँ पे रैंक आ रही है। नो आइडिया सर। राहुल, सर एड्स में जाएंगे हम। ठीक है, हमारी एड्स में जाएंगे, चलो एड में गया, वहाँ उसके पे बाद वहाँ पे सर रैंकिंग का ऑप्शन होगा सर। रैंकिंग का ऑप्शन आता है, कॉलम होगा सर। कॉलम होगा, ठीक है। चल कहाँ पे, लेट्स मैं पहले इसको सर्च का ले लेता हूँ, ठीक है? अब मुझे बता उसके बाद जी कहाँ पे आएगा? सर साइड में कॉलम होगा शायद, या कॉलम फिर हम होगा, कॉलम ऐड करना हो तो ऐड कर सकते देखो हैं यहाँ एवरेज पोजीशन, तो मुझे बता दो ना, मैं यहीं पे देख लेता पे। हूँ, हाँ क्या करूँ, क्या करूँ यहाँ सर, पे? सर यहाँ पे पोजीशन का आएगा शायद। पोजीशन का आएगा यहाँ पे, चलो पोजीशन कन्वर्जन का आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद में एट्रीब्यूट्स का आ रहा है, उसके बाद में ये आ रहा है, उसके बाद कॉल का आ रहा है, फोन कॉल का आ रहा है, मैसेज का आ रहा है, उसके बाद कस्टम कॉलम का भी आ रहा है, कस्टम कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आ तो नहीं रहा है, पोजीशन का तो नहीं आ रहा है। सर एड्स या तो हम, ठीक है, गूगल ने, याद रखना, पहले 3 साल 2 साल पहले एवरेज पोजीशन दिखाता था कि आपकी ऐड कौन सी पोजीशन पे चल रही है, लेकिन गूगल ने अभी उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, याद सब रखना, में है। ठीक है गाइस? राहुल क्लियर? एवरेज Yes, पोजीशन sir. रिमूव कर दिया है, पहले आता था यहाँ पे ऐड लेवल पे, बट अभी नहीं आता है। अच्छा दिव्या बताओ, जी यस दिव्या सर, बता। हम क्या करेंगे कि लाइक हम लोग को पता नहीं कि हमारी एड रैंक, हम लोग एड रैंक मैक्सिमम सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर होता है। मुझे अभी मेरी ऐड चल रही है, मुझे लाइव मेरी ऐड देखना है, कैसे देखूं? लाइव एड देखना है हाँ सर, एड प्रीव्यू टूल होता है कहाँ पे उसके होता लिए। है? सर टूल्स में जाएंगे ठीक है, टूल्स में गया, और कहाँ पे है? फिर यहाँ पे एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस पे क्लिक करेंगे। हाँ जी किया, उसके बाद
हम लोग सर्च करेंगे हमारी टर्म, जैसे हम कोई भी कीवर्ड सर्च ठीक करेंगे, है, सपोज डिजिटल ठीक है। मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद। ठीक है, कर लिया मैंने, ये सर्च कर लिया। चलो उसके बाद योर एड इज नॉट शोइंग, मतलब हमारी Right. एड इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है गाइस, अब और सुना, बहुत लोकेशन बढ़िया। वगैरह चेंज कर। अच्छा मुझे अभिषेक बताना, एक्चुअल सीपीसी क्या मतलब क्या होता है एक्चुअल सीपीसी, अभिषेक? एक्चुअल सीपीसी सर वो होता है जो लाइव गूगल हमसे पैसे लेता है सर, ठीक है, कॉस्ट क्या लेता फॉर्मूला है क्लिक उसका? पे। उसका फॉर्मूला सर एक्चुअल सीपीसी का होता है कि हाँ, एड रैंक ऑफ आवर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर डिवाइड बाय हमारा क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। ठीक है। अच्छा अभिषेक मुझे राहुल मुझे बता, राहुल चल तेरे को इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके जा। राहुल मुझे क्वालिटी स्कोर देखना है, कौन से लेवल पे देखूं? सर वो क्वालिटी स्कोर हमारे कीवर्ड्स पे आता है। कीवर्ड पे गया, उसके बाद तो साइट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वालिटी स्कोर दिखाई देगा। मुझे ये बता कि ये क्वालिटी स्कोर यहाँ पे अच्छा आ रहा है, ये क्वालिटी स्कोर भी अच्छा आ रहा है, ये भी अच्छा आ रहा है, ये क्वालिटी स्कोर डाउन आ रहा है, तो उससे क्या करूं, इसको क्या किया जाए? और सर हम डाउन क्यों आ कीवर्ड्स रहा है, ऑप्टिमाइज ये डाउन क्यों आ रहा है मुझे बता। सर ये हमारा कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि है ना हमारे कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे परफॉर्म करे। हमारे लिंक या पेज लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम ठीक है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारी रैंकिंग ऊपर आए। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि लेट्स से आपने बोला कि ये इसका क्वालिटी स्कोर 5 है, तो मुझे इसको देख के क्या एक्शन और प्लान बनाना चाहिए, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या एक्शन और प्लान बनाऊं? सर कीवर्ड्स को हम देख सकते हैं ना, इसके अलावा हम कुछ और सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकते हैं इनके आगे या पीछे। ओके, और फिर है ठीक ना है। सर शॉर्ट कर सकते हैं जैसे कीवर्ड्स को। अभिषेक बताओ कीवर्ड क्या एड किया जाए, अभिषेक बताओ क्या करूं? सर एक तो ये हम उसका कीवर्ड देखेंगे, फिर एड देखेंगे, अगर ये दोनों अच्छे हैं तो सर फिर हमको उसका लैंडिंग पेज इंप्रूव करना होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे आपने ये वर्ड को बताया, इसको देख के अभी कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे ये बता दो। सर इस पे क्लिक्स भी हो रहे हैं और कन्वर्जन भी हो रहे हैं, मतलब सर इस पे हमको लैंडिंग पेज पे काम करना होगा इसके लिए। ठीक है, लैंडिंग पेज पे कैसे पता चला लैंडिंग पेज पे काम करूं? किस आधार पे आपको ये पता चला, किस आधार पे आपने ये गैस किया कि लैंडिंग पेज पे काम करना चाहिए? क्योंकि सर यहाँ पे सर उस पे क्लिक्स भी हो रहे हैं और इसके इंप्रेशंस भी बढ़ रहे हैं और कन्वर्जन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए और क्वालिटी स्कोर तो वो लैंडिंग पेज के चलो अकॉर्डिंग ही लैंडिंग, खराब हो रहा है। जैसे लैंडिंग, चलो एक पॉइंट ले लिया लैंडिंग पेज, अपार्ट फ्रॉम लैंडिंग पेज। अपार्ट फ्रॉम लैंडिंग पेज सर दिव्या। सर इनिशियली हम उसके देखेंगे कि कन्वर्जन्स हो रहे या नहीं हो रहे हैं हो रहे, इस पे कन्वर्जन हुआ है, उसके बाद ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइक कन्वर्जन्स तो हो रहे हैं, टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर हम लोग पहले एड लेवल पे जाएंगे और एड लेवल पे देखेंगे कि हमारी एड प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एड ग्रुप में जाऊं और इस एड ग्रुप की एड देखूं? यस सर। ठीक है, इस एड ग्रुप पे डबल क्लिक किया, उसके बाद सर एड्स में जाएंगे। पहले इसके कोई कीवर्ड तो टेस्ट नहीं करने, कीवर्ड तो चेक नहीं करने इस एड ग्रुप के? सर हम देखेंगे कि कीवर्ड्स लाइक कौन से कीवर्ड्स पे कन्वर्जन हो रहा है, कौन से पे नहीं हो रहे हैं, तो हम जिस पे नहीं हो रहे हैं और इंप्रेशन नहीं आ रहा है वो पॉज कर देंगे कीवर्ड। ठीक है, पॉज कर देंगे। उसके बाद मैं इस एड ग्रुप के एड में गया, ठीक है, अब क्या चेक कर? जाएंगे, ठीक है, इसमें एड्स क्या में चेक जाके ये करूंगी? देखेंगे कि कौन सी एड से हमको कन्वर्जन मिल रहे हैं। ठीक तो है, हम जो एड्स को कन्वर्जन आ रहे हैं तो वो एड चलने देंगे और बाकी पॉज कर देंगे, सो हमारा क्वालिटी स्कोर ठीक है। ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा राहुल, मुझे कैंपेन लेवल सेटिंग बताना, कौन कौन सी होती है? लेवल में हम कैंपेन लेवल में हम कैंपेन की सेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमारा कंट्री कौन सा होगा, टाइम कौन सा रहेगा, डेट, करेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेट कर सकते ठीक है, हैं। एक्स्ट्रा में मुझे बीडिंग मेथड बता। सर बिडिंग मेथड हमारे पास ऑटोमेटिक और मैनुअल दो बिडिंग मेथड होते हैं। ठीक है, मैनुअल में हमारे है ना हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि हमारे को पर कीवर्ड कितना बिड करना है, राइट। और मैक्स ऑटोमेटिक में हम है ना ऑटोमेटिकली हमारे लिए गूगल बिड करेगा एज पर आवर कीवर्ड। कौन कौन से ऑटोमेटिक बिडिंग में कौन कौन से बिडिंग मेथड होते हैं? सर मैक्सिमम क्लिक्स के लिए हो सकता है, फिर सर है ना लोअर CTR रेट के लिए हो सकता है, फिर सर हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम क्या बोलते हैं इम्प्रेशंस के लिए भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंड लीड्स के भी डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बता ECPC क्या है, कौन से लेवल पे होता है, ऑटोमेटिक में होता है? ECPC एडवांस
CPC होता है, जैसे कौन से- हमारा गूगल कौन से लेवल पे होता है? ऑटोमेटिक में होता है, ऑटोमेटिक बिडिंग में होता है कि मैनुअल में मैनुअल होता में है? होता है, मैनुअल में मैनुअल में होता है। होता है। क्या होता है ECPC का? तो ECPC में एनहांस CPC होता है। हाँ। अगर गूगल को लगता है कि जो कस्टमर सर्च कर रहा है हमारा कीवर्ड और उसको लगता है कि वो क्लिक करेगा, तो हमारी बिड में वो एक्स्ट्रा 20 to 30% डाल सकता है, ताकि हमारी एड ऊपर आए और है ना वो हमारा कस्टमर क्लिक करे ठीक हमारे है, ad। मुझे बताना कि सर्च नेटवर्क में टारगेटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? तो सर्च नेटवर्क में हमारा होता है लोकेशन एंड लैंग्वेज। लोकेशन और लैंग्वेज। अच्छा, लेट्स सी, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग क्या है? तो एडवांस लोकेशन टारगेटिंग मतलब हम एडवांसली टैग कर सकते हैं कि भाई हमारे पर्टिकुलर पिन कोड्स पे या पर्टिकुलर एरिया पे हमारे को अगर 15 किलोमीटर के रेडियस में अगर हमारे को एड चलानी है सिर्फ, तो वहाँ पे ही हम चला सकते हैं। ठीक है, क्या है अभिषेक, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग क्या है? एडवांस में सर हम फिजिकली और इंटरेस्ट दो तरीके से टारगेट कर सकते हैं। राइट। फिजिकली जो वहाँ पे लोकेशन जो वहाँ पे अवेलेबल हम उसी को ऐड दिखा सकते हैं, या फिर ठीक है। इंटरेस्ट में जो कि जिसको उस एरिया में इंटरेस्ट हम उसको इसमें एड्रेस दिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा राहुल, मुझे बताना शॉपिंग ऐड क्या है? राहुल, शॉपिंग ऐड। तो शॉपिंग एड्स हमारे गूगल पे डिस्प्ले होते हैं। अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट सर्च करता है, तो हमारे प्रोडक्ट के गूगल के पेज पे दिखा सकते हैं हमारे ऐड। ठीक है। अच्छा मुझे बताना शॉपिंग ऐड कहाँ कहाँ दिखती है? तो शॉपिंग ऐड गूगल के पेज पे दिखती है, या कोई ऐप पे हो तो ऐप्स पे दिखती है, किसी वेबसाइट पे हो तो वहाँ पे भी कभी कभी दिखा ठीक सकते है। हैं हमारे को। ठीक है, तो मुझे बताना शॉपिंग ऐड चलाने का क्या क्या रूल्स है, कैसे चला सकते हैं? सर उसके लिए हमारे पास गूगल मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, उसके वाया ही हम ना चला सकते हैं, और हमारे पास अपनी वेबसाइट होनी मुझे चाहिए। दो स्टेप बता, इनिशियली 2 स्टेप बता कि शॉपिंग ऐड चलाने के 2 स्टेप बता कि कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे शॉपिंग ऐड? सर गूगल मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। जो ठीक है, business बहुत बढ़िया। account है। यस, पहली टर्म एंड कंडीशन। दूसरी? सर वेबसाइट होनी चाहिए हमारे पास अपनी, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट लिस्ट किए होने चाहिए। ठीक है। थर्ड टर्म एंड कंडीशन? थर्ड टर्म एंड कंडीशन हमारे को वो लिंक करना होता है गूगल एड के, बहुत और बढ़िया। है ना हमारे मर्चेंट Correct. अकाउंट को था, तो बहुत वहाँ से बढ़िया। हमारे हम प्रोडक्ट बहुत ऐड नहीं कर सकते गूगल ऐड। ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा राहुल और बता सकता है कि शॉपिंग एडवर्टाइजिंग में कौन सा बिडिंग मेथड होता है? सर शॉपिंग एडवर्टाइजिंग में हमारा ऑटोमेटिक ही बिड करता है वो। आर यू श्योर? ठीक है। दिव्या, कौन सा होता है? शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट में कॉस्ट ओनली एक ही होता है, क्लिक पे हम लोग सिर्फ पैसा बहुत देते बढ़िया, हैं। मैनुअल सीपीसी होता है, मैनुअल राइट? सीपीसी अच्छा होता है सिर्फ अभिषेक एक ही मुझे बताना, अभिषेक मुझे बता शॉपिंग ऐड के टारगेटिंग मेथड कौन से होते हैं? शॉपिंग ऐड के टारगेटिंग मेथड सर, हाँ लैंग्वेज, हाँ लोकेशन, हाँ इंटरेस्ट, हाँ डेमोग्राफी, हाँ। डिवाइस टारगेटिंग भी कर सकते हैं सर उसमें। ठीक है, ठीक है। और और तो और डिस्प्ले में पेरेंटल क्या? टारगेटिंग। ठीक है, तो डिस्प्ले में कौन कौन से होते हैं? डिस्प्ले में भी सर लैंग्वेज, लोकेशन ठीक है। एंड अच्छा इंटरेस्ट इन। ओके ओके, ठीक है गाइस। अच्छा अभिषेक मुझे बता एड ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? एड ग्रुप इम्पोर्टेंट क्योंकि सर एड ग्रुप के अंदर सर एड्स आते हैं और कीवर्ड आते हैं सर। ठीक है। अच्छा एड ग्रुप क्यों बनाते हैं? सर एड ग्रुप हम उसका कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के लिए बना रहे हैं, जैसे कि किस ब्रांड के लिए बना रहे हैं, सर्विस के लिए बना रहे हैं, या कंपनी के लिए बना रहे हैं, इससे हम क्या कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एड ग्रुप क्यों बनाने चाहिए? ताकि सर रेलेवेंसी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, रेलेवेंसी ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा मुझे ये बता अभिषेक, कीवर्ड सिलेक्शन करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? कीवर्ड सिलेक्शन करते समय हम्म, सर, कीवर्ड सिलेक्शन करते समय हमें ये होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शनल है या इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव होगा तो सर हम इन्फॉर्मेटिव को हम एक्सक्लूड कर देंगे सर। ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे सर। नहीं लेंगे। अच्छा अभिषेक मुझे एक और चीज बता कि लेट्स सी मेरे पास 500 रुपए ही है, ठीक है, 500 रुपए मेरे पास डेली बजट है, ठीक है, और मुझे एकदम हाई इंटेंट वाले कीवर्ड पे ऐड चलाना है, हाई इंटेंट वाले कीवर्ड, तो कैसे सेलेक्ट करूं? जैसे मेरा बिजनेस है, मेरे पास 500 रुपए ही है, तो मैं कौन से कीवर्ड पे ऐड चलाऊं, बता। जो सर ट्रांजेक्शनल होंगे उस पे, और जिसके सर्चेस ज्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ से तू क्या बोलता है, यहाँ पे मैं टूल्स पे गया, कीवर्ड प्लानर में गया, ठीक है,
तो मुझे बता मैं कौन सा कीवर्ड को किस कीवर्ड पे ऐड चलाऊं जो एकदम मुझे रिजल्ट भी मिले। मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस किया कि मैं ऐड चल रहा है, रिलेवेंट क्लिक्स हो रहे हैं, लैंडिंग पेज भी रिलेवेंट, लेकिन लीड जनरेट नहीं हो रही है, लीड जनरेट नहीं हो रही है। तो मुझे हाई इंटेंट वाले, मतलब फालतू पैसा नहीं जाना चाहिए, जिसका इंटेंट हाई हो उसी कीवर्ड पे ऐड चलानी। तो मैं क्या करूं बता। सर पहले हम हमारा किस कीवर्ड के मतलब किस प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसके बाद में ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने लिखा सर, फिर तो कौन से एरिया में चलाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें 2 कीवर्ड बताता हूँ, ठीक है, 2 कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये दोनों कीवर्ड क्या है मुझे ये बताना, इंफॉर्मेशनल है क्या ट्रांजैक्शनल है। जैसे एक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये कीवर्ड सर्च किया और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, ये 2 कीवर्ड लिया। तो मुझे बता ये दोनों ट्रांजैक्शनल है कि इंफॉर्मेशनल है, पहले ही बता। सर नीचे वाला जो है वो ट्रांजैक्शनल है, लेकिन ऊपर वाला इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, क्या लगता दिव्या? सर दोनों ट्रांजैक्शनल है, बट स्पेसिफिकली हम अहमदाबाद में कोर्स प्रोवाइड करना अच्छा, चाहते हैं। तो राहुल हमारे लिए तुम क्या बोलते हो? कोर्स इन अहमदाबाद राहुल तुम relevant क्या है। बोलते हो? ट्रांजैक्शनल है, दोनों ट्रांजैक्शनल है। तो मुझे बता मैं इस कीवर्ड पे ऐड चलाऊं कि इस पे चलाऊं? सर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ आपके सिटी के बाहर ठीक देते हो कि है, नहीं चल देते। मैं तेरे को एक बोलता हूं, मेरे पास डेली बजट 500 रुपये है, तो तू क्या बजाएगा? सर मैं पहले अपने हाई वॉल्यूम सर्च कीवर्ड सर्च करूंगा हाँ और उन पे देखूंगा हमारे फाइट्स अपने क्या बोलते हैं कीवर्ड फाइट कितना हो रहा है हमारा, हम उसके हाँ। लिए है ना ऊबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि है ना कंपटीशन लो रहे जहाँ पे, और जहाँ पे ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं सर्चेस होते हो, क्लिक्स होते हो कीवर्ड पे, वहाँ पे हम है ना एड्स रन करेंगे। ठीक है। अभी तो सुनना उसके दिव्या हिसाब को से हमको क्लिक दिव्या, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अभी दिव्या को सुनना। दिव्या ने मेरे पास में इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। दिव्या एक्सप्लेन कर कि हमने क्या किया। बेसिकली विल रन एड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, बिकॉज हमने टारगेट लोकेशन हमारा अहमदाबाद किया था। तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि कोई भी इंसान सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो दैट आर द मतलब लाइक हॉटेस्ट लीड्स होती है वो, तो डायरेक्ट क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है हम जब स्पेसिफिक चलाते हैं। मुझे ये बता अभिषेक कि इस इंटेंट का हाई इंटेंट, जैसे कोई सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और कोई सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, किसका इंटेंट हाई लग रहा है? सर नीचे वाले का। नीचे वाले का। जब याद रखना गाइस, जब आपको लीड जनरेट करना हो और बजट आपके पास कम हो, तो ऐसे कीवर्ड लेना जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो। लॉन्ग टेल का मतलब क्या हो? बड़े कीवर्ड। जितने बड़े कीवर्ड होते हैं उसका इंटेंट हाई होता है। गाइस एवरीवन क्लियर? अभिषेक क्लियर? याद रखना गाइस एवरीवन क्लियर? नाउ सी, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताएगा राहुल, बताएगा राहुल मेरी कैंपेन को ऑटोमेशन करना है, कैसे करो राहुल? ऑटोमेट करना है, बता कैसे करूं? टूल्स, ठीक है, उसके बाद बता मेरे भाई, बता अभिषेक, बता। सर इसमें रूल्स करके ऑप्शन है बल्क एक्शन में। कहाँ पे? यहाँ पे रूल्स बनाओ। हाँ रूल्स, उस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर सर प्लस पे। ठीक है, प्लस पे, उसके बाद फिर सर हम एड्स को करना चाहते हैं, एड ग्रुप को करना चाहते हैं, उस पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम एड्स को करना चाहते हैं तो एड्स पे क्लिक करेंगे। रूल्स हम बहुत सारे लेवल पे सेट कर सकते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, फाइनल खत्म कर रहा हूँ। लेट्स सी, एक एड ग्रुप में राहुल कितने कीवर्ड होने चाहिए? सर एक एड ग्रुप में हमारे कम से कम 5 से 6 कीवर्ड होने चाहिए। 5 से 6 कीवर्ड होने चाहिए। 3 मिनिमम, 3 से 5। अच्छा राहुल, मुझे ये बता कि जब तू एड ग्रुप लेता है तो एड ग्रुप में कीवर्ड डालता है, राइट? यस सर। एड ग्रुप लेता है तो एड ग्रुप में कीवर्ड डालता है। तो मुझे ये बता कीवर्ड की बिड कैसे डिसाइड करता है? सर कीवर्ड की बिड हम एवरेज देख सकते हैं गूगल पे, हमारी कितनी बिडिंग होती है उस कैसे देख सकता हूँ? सर कीवर्ड प्लानर पे, या फिर हम जैसे कीवर्ड ऐड कर लेते हैं तो वहां पे भी कभी कभी दिखाएंगे। कैसे मुझे बताना, कैसे देखो? कीवर्ड प्लानर में गए, उसके बाद सर प्रॉपर कीवर्ड सर्च करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ राहुल, मुझे बताना कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन दोनों की बीट सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? सॉरी सर?
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद और डिजिटल मार्केटिंग sir. कोर्स दोनों के बीच सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? नहीं सर, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बिट ज्यादा रहेगी क्योंकि वो इंडिया लेवल पे फाइट करते हो आप, यहाँ ठीक है, कंट्री लेवल पे फाइट करते ठीक हो। है, अभी और मुझे जो ये बता। अहमदाबाद का है तो प्रॉपर हाँ। अहमदाबाद पे फाइट करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे बता, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया ऑल इंडिया से, तो बीड कितना लगाएगा तो इस कीवर्ड पे? सर इनका हम एवरेज लेंगे मिनिमम, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको सॉरी पैसे दिखा रहे हैं आपको, हाँ, तो है ना सॉरी वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आप एवरेज ले सकते हो अपने हिसाब से कि भी मिनिमम इतना चल रहा है रेट कीवर्ड ठीक है, का, तो ठीक उसके है, हिसाब से हम एड्स पे अपने बजट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक। अब सुना, अब ध्यान से सुना। अब मैंने इसको अहमदाबाद इंडिया की जगह अगर मैं इसको अहमदाबाद कर लेता हूँ तो बीट चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ सर होगी, जरूर होगी। होगी, जरूर होगी। चलो देखते हैं। Yes, sir. चलो मैंने कर लिया इसको, कोई चेंजेस तो नहीं हुए? नहीं होती है, ठीक है। अब लेट्स सी दूसरा ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद को हटा देता हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लेता हूँ, तो कुछ चेंजेस मिलेंगे? नहीं सर, नहीं है। नहीं मिलते हैं। गाइस एवरीवन क्लियर? गाइस क्लियर समय आपको? राइट। तो याद रखना बीड यहाँ से कोई चीज, लेकिन इन अहमदाबाद वाला कीवर्ड पे ऐड चलाओगे ना तो इंटेंट हाई होता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स in अहमदाबाद, इंटेंट अहमदाबाद का हाई होता है। गाइस एवरीवन क्लियर? क्योंकि नाउ एवरीवन क्लियर? डन। सो पहला चीज थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है, फीडबैक दे देता हूँ। मैंने कहीं आपको पूछा, डेफिनेशन पूछा, बहुत सारी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पूछी, मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी पूछी, मैंने आपको केस स्टडी में घुमाया, राइट? मैंने बोला ये क्यों करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ये सेटिंग कहाँ होती है, किस जगह होती है। तो मैंने आपको एकदम फ्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या थी कि आपको ये चीज आती होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या आती कि ये चीज आपको आती होगी, क्योंकि आपने अपने रिज्यूमे में प्रैक्टिकली मेंशन किया है कि आपने ये काम किया, तो मुझे तो ये लगा कि भाई आपको ये चीज आती होगी। यस या नो अभिषेक? राइट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा था कौन सी सेटिंग कहाँ है, किस जगह पे है। तो आपको काम कहाँ पे करना चाहिए अभिषेक? सेटिंग्स को सेटिंग को, ऑप्टिमाइजेशन को, स्ट्रेटेजी को। अब मैं थोड़ी सी फीडबैक देना चाहता हूं अभिषेक। नाउ सी अभिषेक, थोड़े से कंसेप्ट पे काम कर। तो यहाँ पे पहला चीज जो तुम्हें लगता है अभिषेक, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम लगा, ठीक है। एक आवाज जो होती है ना, आवाज बोलते हैं, एक जो एक्सप्रेशन होता है ना, आधा आदमी इंटरव्यूअर को वहीं पे खत्म कर लेता पॉजिटिव सोच के साथ। तुम्हें नहीं आता है, गुड, लेकिन तेरी आईज, तेरा इंप्रेशन, तेरा बोलने का तरीका एकदम कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि ये बंदा जो है, राहुल है, दिव्या है, उसको आता है। हाँ बोलना नहीं आता बट इन्होंने किया, इसको कॉन्फिडेंट तो है। सो एक चीज मुझे हमेशा एक चीज बताता हूँ, मुझे कोई चीज नहीं, हमें कॉन्फिडेंस सर, राइट, हाँ सर ऐसे ही होता है 100%। मतलब वो एक पागलपन, जुनून दिखना चाहिए इंटरव्यू में, राइट। पहला पॉइंट क्लियर। कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं लिखा। ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं आने का मतलब ये भी होता है कि हम पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लर्न करेंगे, डन कर दी, ठीक है। दूसरा राहुल, तुम्हारी मिस्टेक ये होती है कि तुम्हारे आईज कांटेक्ट बराबर नहीं होता है। तुम जब कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो तुम ऐसे मूवमेंट कर रहे हो। यू गॉट इट? क्लियर समझ आपको राहुल? सो ये नहीं करना, ये थोड़ी सी गलती थी तुम्हारी, ठीक है। अच्छा दिव्या, सेम टू सेम कॉन्फिडेंट? सर वो कल के बाद तो इतना डाउन हो गया है ना, अरे नहीं चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं करने का। क्या होता है देखो, सुनो, बोलते हैं ना, आई डोंट रिग्रेट इफ आई फेल, आई रिग्रेट इफ आई डोंट ट्राई। तुम लोगों ने इंटरव्यू दिया तो कुछ सीखा ना आज के दौर में? सीखा कि नहीं सीखा? सो नाउ सी, अब वो लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि वो डर गए कि भाई रेस में भागेंगे तो फेल हो गए, तो फेल के कारण वो फेल के डर में भाग नहीं पाए। तो वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, राइट? समझ आपको? सो फेल वही बंदा कर सकता है। आप कैसे जजमेंट कर सकते हो आप फेल हो जाएंगे? कर ही नहीं सकते, राइट? मैं जो आपको बता रहा, नहीं कर सकते ना गाइस, हमको थोड़ी पता है, फ्यूचर थोड़ी पता है कि मैं 2 घंटे में जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। सो भाई अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज गाइस, राहुल, अभिषेक, तुम्हारा याद रखना, जिस दिन इंटरव्यू हो ना, नेट की कनेक्टिविटी बराबर देखना। आधा इरिटेशन नेट के कारण आ जाता है, ठीक है?
आधा इरिटेशन जो होता है ना, जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो सामने वाले को भी इरिटेशन होता है, तेरे को भी इरिटेशन होगा। तू जो बोलना चाहता है समझ में नहीं आएगा, और वो जो बोलना चाहता है तेरे समझ में नहीं आएगा। तेरे को सब कुछ आता है लेकिन नेट के कारण तू मर जाएगा। क्लियर? ओके सर। डन सबरा। दूसरा, जहां आप बैठते हो ना, जहां आप बैठते हो, जिस जगह पे बैठते हो उसको पूरा घर नहीं दिखाने का है। एक साइड में एक जगह पे वॉल पे बैठ जाओ, सिर्फ वॉल दिखे। जैसे तुम्हारा राहुल पीछे का जैसे दिख रहा है, दिव्या जैसे बैठी हुई, दिव्या इज फाइन, लेकिन हाथ में लेके बैठी हुई है दिव्या मोबाइल को, राइट? राइट। सो ये पता चलता है सामने वाले को। राहुल तुम जैसे अभिषेक बैठे हो, तुम्हारा पीछे का, तुम्हें कैसे बैठना चाहिए था अभिषेक? ये वाली वॉल पे बैठना चाहिए था, ये वाली वॉल पे, राइट? क्लियर अभिषेक? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है गाइस, क्लियर। दूसरा, अभिषेक ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, थोड़ा सा इंग्लिश में बात करो, फिर हिंदी में मुड़ जाओ। थोड़ा सा इंग्लिश में शुरुआत कर लो, फिर हिंदी में ट्रांसफर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियली थोड़ा सा वर्डिंग यूज कर लो कि ये सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसा बोला, फिर मैं इंग्लिश हिंदी में मूव कर दिया, वो चलेगा। राहुल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट एंड थोड़ा सा थ्योरिकली तुम थोड़े वीक पड़ गए, थ्योरिकल थोड़े वीक पड़ गए तुम, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगा होगा थ्योरिकल थोड़ा वीक पड़ गए कि तुम्हें वो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। तो गाइस, मेरा ये जो लास्ट का लेक्चर है ना, जैसे अभिषेक तुम्हें भी लिया था, तुम लोगों की बैच में लिया था कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। लास्ट वाला जो लेक्चर था ना, जब तुम इंटरव्यू देखने जाओ या इंटरव्यू देने जाओ, उससे 2 घंटा पहले वो देख ही लेने का, क्योंकि वही सारी चीजों के क्वेश्चंस थे कि नहीं? लास्ट वाले मैं पूछ रहा था कैसे ऑडियंस बनती है, मैंने सबको साथ में इसलिए लिया कि चलो अभिषेक को नहीं आता दिव्या को आ जाएगा, तो दिव्या से अभिषेक सीख लेगा। राहुल को नहीं आता तो राहुल अभिषेक से सीख जाएगा, अभिषेक को नहीं आता तो राहुल से सीख जाएगा। तो तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं स्यूस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था कैसे कि तुमने आंसर नहीं दिया, दिव्या ने दिया, दिव्या ने दिया, तो तुम्हें पता चला। प्लस तुम्हारी मिस्टेक ही भी बताई कि भाई देखो ये होता है, ये गलत है, राइट? तो बीट हम कौन से लेवल पे सेट करते हैं, किसके लिए सेट करते हैं कैसे? एडग्रुप के अंदर बीट सेट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी देखो, वो सीटीआर पूछेगा, लेकिन सीटीआर के बाद आपको इसको बताना सर सीटीआर ये होता है, बट सीटीआर हम कैंपे लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, एडग्रुप। वो ये नहीं पूछेगा तुम बताओ कैंपे लेवल पे होता क्या एडग्रुप लेवल पे। एक क्वेश्चन उसने पूछा तो उसको पूरा साफ ही कर दो। समझ में आया अभिषेक? ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीटीआर पूछा, सर सीटीआर होता है का परसेंटेज ऑफ क्लिक, इसका फॉर्मूला होता है क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। सर सीटीआर इसलिए पूछा, सीटीआर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम जज कर सकते हैं हमारी कैंपेन बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा, हम सिर्फ कैंपेन के बेस पे हम सीटीआर चेक नहीं कर सकते कि हमारी कैंपेन अच्छी चल रही है, हम सारे एडग्रुप लेवल पे एडग्रुप के लेवल पे भी जाके चेक करेंगे कि कौन से एडग्रुप का सीटीआर अच्छा है, कौन से एडग्रुप का सीटीआर अच्छा नहीं है। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, हर एडग्रुप के अंदर कीवर्ड भी चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड का सीटीआर अच्छा है, फिर हम उस एडग्रुप की एड भी चेक करेंगे कौन सी एड का सीटीआर। तो ये होता है आंसर। ये क्या होता है कैसे? आंसर होता है। क्लियर है समय आपको? तो वो नहीं पूछेगा कि भाई आप मुझे पूरा बताओ, आपको पूरा बताना है। क्यों? क्योंकि आपको आता है। आपको सिर्फ ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूछा गया वही आंसर देगा, नहीं, आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। गाइस, ये राइट्स होते हैं। तो दूसरा, जैसे उसने पूछा तुम्हें दिव्या क्या ऑप्टिमाइज करने का। सो सर, पहला चीज we'll start with PPC ads. So PPC ads से मुझे पता चलता है 2% कन्वर्जन होते हैं। अगर मुझे CPL और इंक्रीज करना है तो पहले सर मुझे एड ग्रुप को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ओवरऑल मुझे देखना पड़ेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, तो भी सर इससे कन्वर्जन नहीं इंक्रीज होते हैं। तब मैं सर PPC के साथ में एक और स्टार्ट ऐड करूंगी, वो है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में मैं क्या करूंगी, रीमार्केटिंग कोड डालूंगी, उससे सर मैं रीमार्केटिंग ऐड दिखाऊंगा, बार बार वो जाएगा, उसको ऐड दिखेगी। दूसरा सर, हम ये भी कर सकते हैं कि जो बंदा इस प्रोडक्ट को विजिट करके गया उसको वही प्रोडक्ट की ऐड दिखे। क्लियर? दूसरे इसके साथ में सर PPC ऐड के साथ में हम YouTube रीमार्केटिंग भी चलाएंगे, उसके बाद हम Gmail रीमार्केटिंग भी चलाएंगे। जो कहीं पे भी जाता हो सर हम अटैक करेंगे। सर अपार्ट फ्रॉम गूगल एड्स के साथ हम लोग हमारी वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल डालेंगे, जिससे क्या होगा, बंदा विजिट करके हमारी वेबसाइट में जाएगा, बंदा हमारी वेबसाइट को विजिट करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा, तो हम उन्हीं को ऐड दिखाएंगे। तो कन्वर्जन करवाने के हम बहुत सारे स्टेप्स करेंगे। तो ये होता है आंसर। अभिषेक क्लियर? ये होता है आंसर, ठीक है? तो आपको जो एक पूछा जाए तो उसका पूरा सारांश तैयार कर लो। और ये सारांश कब होता है? आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ। मिरर के सामने बैठो, एक अपने मिरर बैठो, ये जो सारे मैंने क्वेश्चन पूछे या बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं आपको पूछे गए, वही सारे क्वेश्चन, जैसे
बोला कि सर ये होता है, ऐसा होता है। तैयारी, मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ अभी अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन एक कहीं पे भी क्या बोलते हैं स्पीच देने गया, ठीक है। तो उसको बुलाया गया, कॉलेज में बुलाया गया कि सर आप स्पीच देना आइए ना, बच्चों को मोटिवेट कीजिए ना। तो अभिषेक तुम बिलीव नहीं करोगे, अमिताभ बच्चन 3 घंटे पहला गया, क्यों, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में एक बड़ी स्पीच होने वाली थी, और वो इतना खलनायक, मतलब बोलते हैं ना जबरदस्त, जिसकी बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी थी, वो कुछ भी बोल सकता था, लेकिन 3 घंटे पहले जाके उसी स्टेज पे वो प्रैक्टिस करने लग गया। तो लोगों ने उसको पूछा, सर आप इतने अच्छी स्पीच बोलते हो, आपका बहुत कुछ होता है, बोलते हैं रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमारा क्या बोलते कि शो होने वाला होता है, उससे पहले रिहर्सल इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई बड़े बड़े नाटक देखो, कहीं ना कहीं देखो, मैदान में भागने के लिए रिहर्सल होती कि नहीं होती, गाइस? जितनी रिहर्सल ज्यादा होगी ना, उतना आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ तो लेते बट हम रिहर्सल नहीं करते। रिहर्सल करने का मतलब होता है आज खुद ही आंसर देना स्टार्ट कीजिए, अच्छा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, खुद के वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, खुद देखो आप कैसे बोल रहे हो, कि आपका आई कांटेक्ट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, देखो आपकी स्पीच देखो। तो जैसे तुम्हें पता है कि 99% क्वेश्चन यही पूछने वाला है, ये तो फिक्स है। दिव्या, कल क्या इसके अलावा कोई उसने क्वेश्चन पूछा? नहीं, नॉन यही था, सीटीआर, कीवर्ड और ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, पीपीसी एड क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है, गूगल एड्स के टाइप्स क्या होते हैं, पीपीसी एड के क्या टाइप्स होते हैं, ये। राइट, यही पूछा ना उसने, और तो कुछ नहीं पूछा हम्म। ना। तो अब तुम्हें वो सुनो, 10 क्वेश्चन में वो आदमी तुम्हें क्या जज कर पाएगा कि तू उस कंपनी के लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखता है, वो तुम्हारा थ्योरिकल देखेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज देखेगा और इंग्लिश चेक करेगा, बस खत्म, डन हो गया। उसको भी पता है, वो उसको नहीं पड़ा, उसको बस ये देखना है कि ये बंदा या ये बंदी मेरी टीम में फिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या ये क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्या ये मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये 3 चीजें चेक करता है। लेकिन वो 10 मिनट का जो इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको रिहर्सल चाहिए, रिहर्सल जबरदस्त चाहिए। जितनी रिहर्सल ज्यादा करोगे ना, वो 10 मिनट का, जैसे हेलो सर, हाउ आर यू सर, कैसे हो आप, एकदम बढ़िया, आई एम हैप्पी टू सी यू सर। सो उसको बोले यार ये आदमी बहुत जबरदस्त है, एक में ऐसा बोला, एक ये मुंह ऐसा बना के बैठो, हाँ, तो उसको क्या लगेगा, इसको जरूरत है। एक बोला यस सर, हाँ यस परफेक्ट सर, यस सर ये होता है सर, ऐसा ऐसा होता है। दोनों के आंसर देने के तरीके अलग होते हैं, एक्सप्रेशन अलग हो रहे कि नहीं हो रहे, कैसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो एक्सप्रेशन से ही खेल आता है, और एक्सप्रेशन खेल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। गाइस मैं आपको ये मत सोचो कि वो मुझे लेगा कि नहीं लेगा। अगर आपने ये सोचने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आप फेल हो जाएंगे। आप ये सोचो कि ये 10 मिनट मैं अपना जबरदस्त कैसे, मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट शॉट दूं। गाइस क्लियर? लेकिन अगेन मैं बोलता हूं, राहुल, अभिषेक एंड दिव्या, मेक अ रिहर्सल एवरी डे, सुबह एंड शाम तैयारी करो। सुबह भी इंटरव्यू दो अपने आप को कैमरा रख के, और शाम को भी इंटरव्यू दो, 4 बार दे दो, आपकी रिहर्सल बहुत तगड़ी हो जाएगी। गाइस क्लियर? ये सारे जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ये आपको 1 साल 6 मंथ जैसा एक्सपीरियंस के पूछे हैं। मतलब आप इसके लिए कैपेबल हो तो आप तो बेसिक्स वाले इंटरव्यू तो ऐसे ही क्रैक कर लोगे। जैसे मैंने देखा तुम्हें अलग अलग जाके एक एक चीज पूछ रहा था, अगर ये लेवल का आप तैयारी करते हो तो आप समझना आप क्रैक कर लोगे। क्लियर अभिषेक? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो, इंटरव्यू हो जाएंगे। इंटरव्यू की टेंशन मत लो, कंपनी बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनी पड़ी हुई है, कि हम सारी मिस्टेक यहां करेंगे ना तो बाहर जाके मिस्टेक करने के लायक नहीं होंगे। राइट, तो हम वो बाहर मिस्टेक करनी नहीं। फिर कोई लोग आपको बोलेगा कि ये करो तो आपको दिल में चुभेगा, कोई बंदा दूसरा बाहर का बंदा बोलेगा कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आपको दिल में चुभेगा। तो दिल में नहीं चुभाने के लिए आप तैयारी कर लो, रिहर्सल पे काम कर लो। तो रिहर्सल ज्यादा करोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। रिहर्सल, हम तो क्या, जैसे एग्जांपल, मैंने कोई चीज की रिहर्सल नहीं की और डायरेक्टली मैं कहीं डांस करने चला गया तो मेरा डांस तो खराब हो गई, क्योंकि मैंने तो रिहर्सल ही नहीं की। लेकिन उसकी रिहर्सल करता हूं, बहुत अच्छा करता हूं, ठीक है, तो मुझे पता चलता है ये मिस्टेक हो गई तो उसको ये किया जाता है। समय आपको, तो मैं खुद भी कभी कभी, आप मुझे देखना, मैं ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, दिव्या को पता होगा या मेरे स्टाफ को, मैं कभी क्लास स्टार्ट होने से पहले रिहर्सल करता हूं, आज ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, ये करना है। मुझे पता होता है कि यही पढ़ाना है, तो भी मैं रिहर्सल करके पढ़ाता हूं। क्यों? मुझे पता होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं सॉफ्टवेयर लगातार टेस्ट करता हूं कि यार ये क्लास में होगा कि नहीं होगा, तो मैं रिहर्सल करता हूं, क्योंकि क्लास हो रही है उसके बीच में मेरा नेट चल रहा है,
अच्छा लेट्स सी, एग्जांपल समझना, मैं लेक्चर ले रहा हूं और मैंने लैपटॉप का प्लग नहीं डाला हुआ है, तो ये रिहर्सल नहीं थी। मेरे को पता होना चाहिए माइक रेडी होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ये माइक रेडी होना चाहिए, मुझे पता है लाइटिंग होनी चाहिए, तो ये मेरी रिहर्सल है। शो चालू होने से पहले रिहर्सल होता है। क्लियर गाइस स्टूडेंट, कि शो के बीच में कोई मिस्टेक हुई ना तो कोई माफ नहीं करता है। क्लियर एवरीवन? डन? सो ऑल द Sir. बेस्ट। Yes, बहुत अच्छा sir. किया राहुल, थोड़ा सा काम कर, अभिषेक काम कर, दिव्या काम कर। राहुल तुम्हें आइस कांटेक्ट पे काम करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली साउंड होना है एंड थ्योरिकली थोड़ा सा वर्कआउट करना। प्रैक्टिकली जो तुम्हें किया तुम्हें पता होता है लेकिन तुम बोल नहीं पाते हो, तो उसको क्या है, रिहर्सल कर, हर चीज की रिहर्सल करो गाइस। ठीक है एवरीवन? क्लियर? डन? Okay. सो Okay, ऑल sir. द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है? Thank you, sir.